Same goes for Ekta Parekh and Irfan Naik. Please edit your names. Wait for you. Irfan Naik, Ekta Parekh, please edit your names. You there? In case if you're facing any problem, then you can text in group while changing your name. Sanyu Mango, please don't like this. How to edit? Abid, can you please put it in the group? How to edit the name? Like put the press. Basically, what you have to do, you have to just go to your Google account and change the name. It will work out. Meanwhile, Abid, please share the screenshots how to change the name if you can. Okay. So, good evening. Just a minute. Okay, cool. So almost everyone is having the name. Ehsan Ekta Muhammad Ali. Please make sure. Nitya Tulsi. Four people. Please make sure from the next class you are editing your name. We'll start today. So as requested in the last class, I asked all of you to have a notebook with you. We're gonna quickly start with the basics first. And when I'm mentioning the basics again, those basics will be for Python's starting point of view. Okay. So we're gonna cover all of them quickly. Got one more. Okay. So I'm gonna quickly repeat whatever we have covered in the last class. Like we were having a varied discussion. Uh, Abid, are you there? I'm adding you as a co-host. Please enter everyone because it's disturbing me. Okay. Whoever is entering, just enter. Allow them. Okay. So let's quickly start with the basic discussion what we were having in the last class. Like initially, what we were discussing about the Python. Why Python? So if any one of you
want to keep notes, that will be really good. If you want to keep the notes, then you can start writing the thing that Python is a high level interpreted programming language. Okay, and what is the meaning of high level interpreted? The high level means simply that it is more similar to the English. The syntax of the Python is similar to the English. If you want to write something, then you can simply put print whatever words that you are using in English, you can simply write it in your compiler. Okay, now apart from that, there are some other points which makes Python is a better language in comparison to the other programming language that are available here. That is easy to learn. Everyone knows that whenever you are a beginner, you should always start with the Python because the syntax is simpler here. So it is easy to learn. Next, versatile. When I'm saying versatile, the same point which I was mentioning in the last session, that if you are a web developer, if you are a app developer, if you are a data scientist, or anyone, AI engineer, ML engineer, you can use Python. Why? Because the Python's libraries and modules and the versions of the Python allow you to have a lot of features which are compatible with all of these things. Okay, now after mentioning these 2 points, there are some other use cases like that I mentioned in the last class. Even if you are doing a simple task, someone has already done that and they are providing you the modules and the libraries in a format. So you just need to import those modules and the libraries and your task is done. Like for example, if you are doing any time related queries, any mathematics related functions or anything, you need to just simply import those libraries and modules, and you will be able to solve all of your programming which were previously of 20 lines, 30 lines, but with the help of the modules and libraries you can do them in 2, 3, 4 lines maximum. Okay, so we call it extensive libraries. So because of the extensive libraries, Python is famous. So what are basic points? High level, versatile, and extensive libraries. But you know, whenever we are working with the Python programming or any programming language or any sort of software developing thing, there is one more point which makes the things more typical or make the things more important. That is the community of it. I'm not sure if you're aware about these things or not. The community is like ऐसा आप समझिए कि आपका कोई एक पर्टिकुलर टास्क है जिसको करने वाले बहुत सारे लोग हैं. तो अगर मुझे कोई डाउट आएगा, if I am the person out of million billion people who are already working in this field, in case if I'm getting out, okay, I'm 101% sure that the doubt or the problem that I'm getting right now, someone has already got it. Okay, if someone has already got it, then he might be uploading it on a lot of things previously. Previously, before this chat gpt things, there were a famous website already. It is famous, I will not say there were stack overflow type of things. Okay, so everyone used to put their queries there, have the doubts there, and the community, like the people who are having the solution of that, they used to put their solution there. तो ऐसा ना एक पूरा मतलब दोस्ती वाला माहौल बन जाता है पाइथन के केस में, क्योंकि बहुत सारे पाइथन डेवलपर्स हैं. होता क्या है कि व्हेन आई वाज मेंशनिंग इन द लास्ट सेशन दैट देयर आर मोर देन 8000 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर एस्टेब्लिश्ड. ऐसा नहीं कि 8000 ही हैं. आप भी अगर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने चाहेंगे, मेक सम एडिट, देन यू कैन आल्सो, आप चैट जीपीटी को बोलिए, आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप कर सकते हैं. ओके, बट एस्टेब्लिश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम यूज कर रहे हैं, दे आर मोर देन अराउंड 8000. But the thing is that not all programming languages has this vast community. Okay, but Python has it, so that's why most of the people prefer the Python, and most of the people who are the beginners, they prefer Python. Because if I'm a beginner, I'm damn sure that I'm getting a lot of doubts, I'm getting a lot of confusions, I'm getting a lot of errors. Those errors were already solved by someone. Okay, now as of now, we will be simply using any, for example, I'm using the online compiler. Let me do it, then I will share my screen. Okay.
Please let me know if you can see my screen. Can you see my screen, everyone? Just confirm. Please be attentive. ठीक है, सोना नहीं है. I will try कि मैं आपको बोरिंग चीजें skip करता रहूं, but still सोना नहीं. ठीक है. Now, those people who are already having the experience of the Python, they already knows that Python or any programming language that has an extension. Extension बोले तो क्या? Extension is the simple thing. For example, if I am using music files, then I have MP3. MP3 that is something which we generally use. वरना MP3 के अलावा भी बहुत सारे extensions होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं. ठीक है. If I'm using an image, इमेज में तो आपको पता होंगे PNG होता है, JPG होता है, JPEG होता है, HFVIG होता है और भी बहुत सारे होते हैं, VAT होते हैं. और अगर आप एक इमेज को जब 3D प्रिंट में लेके जाते हैं तब STL भी होता है, आप CAD यूज करते हैं तब और 2-4 आ जाते हैं. तो एवरीथिंग हैज देयर स्पेसिफिक एक्सटेंशन. एनी आइडिया कि हमें एक्सटेंशन की नीड क्यों पड़ती है? कोई बताएगा कि हर चीज के पीछे एक्सटेंशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है कि दिस डॉट दिस डॉट दिस. पीडीएफ भी होती है तो पीडीएफ का भी एक्सटेंशन, वर्ड फाइल का भी एक्सटेंशन, एक्सेल ताकि का भी. प्रोग्राम्स रिकॉग्नाइज कर पाए कौन से टाइप की फाइल है. ओके, एनीवन एल्स? ओके, सो यू आर करेक्ट, प्रोग्राम रिकॉग्नाइज कर पाए. बट जनरली क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्राम, जब हम अपने ओएस को यूज कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब ऑपरेटिंग सिस्टम को तो नहीं पता ना आप किस चीज पे क्लिक कर रहे हो, आपका कर्सर क्या, बट आपके जो बैकएंड में होता है तब उसको नहीं पता कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करने के लिए हमें एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है. बट सेम जब आप पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तब कंपाइलर की हेल्प करने के लिए हम इसमें ना एक्सटेंशन सेट करते हैं. लाइक फॉर पाइथन वी यूज .py. कोई भी आप फाइल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ यहाँ पे main.py करके एक फाइल है, देन एवरी फाइल विल हैव अ स्पेसिफिक नेम. फॉर एग्जांपल इसका मेन है, देन .py विल बी द एक्सटेंशन. ओके, नाउ जिन लोगों के पास पाइथन फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास डाउनलोडेड नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और आपको सर्च करना है पाइथन. अब मैं वापस से उन्हें दिखाने वाला, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपको. python.org करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है. python.org की वेबसाइट आप जब ओपन करेंगे तब वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देगा डाउनलोड पाइथन. लुक, होता क्या है, आप जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब आपको अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितने भी पैकेट्स होते हैं ना, पैकेजेस होते हैं जिनको हम पैकेजेस बोलते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो तो आप सॉफ्टवेयर तो आपके पास फ्रंट एंड है. बैक एंड में क्या होता है कि उसके पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ होगी तो उसकी एक अलग एक इन्फॉर्मेशन डेटा सेट होता है. तो जब पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो तो वही पैकेजेस ही होते हैं जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन रन कर रही होती है. सिमिलर गोज विद दिस पाइथन भी क्या है, सेट ऑफ पैकेजेस है. सेट ऑफ ये मान लीजिए कि एक शॉप है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे डब्बे हैं, वो सारे भरे पड़े हैं. तो उन सबको पहले में इंस्टॉल करना पड़ता है, अपने पीसी को कंपैटिबल बनाना पड़ता है पाइथन को रन करने के लिए, पाइथन स्क्रिप्ट रन करने के लिए. ठीक है, एक बार आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, देन पीपल सजेस्ट कि आप आईडी इंस्टॉल करने जाते हैं, बट इट इजंट रिक्वायर्ड. अगर एक बार आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, इसका मतलब आपके पीसी में अगर आप कोई भी पाइथन का कोड लिखेंगे और फिर आप उसमें .py एक्सटेंशन यूज करेंगे, देन आप उसको रन कर सकते हैं. जो भी उसका आउटपुट होगा वो आप देख सकते हैं. इज देयर एनीवन जो विंडोज के अलावा लिनक्स भी यूज करते हैं, लिनक्स ओएस? ओके, तो जब आप लिनक्स ओएस, गुड गुड गुड, अगर आप लिनक्स ओएस यूज करते हैं देन आपको पता होता है ना कि लिनक्स ओएस में लाइक आई यूज इट फॉर 4 years, बट मुझे कभी पाइथन कंपाइलर की यूज लाइक एक अलग से आईडी की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. क्योंकि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट हम सारा काम टर्मिनल पे कर रहे होते हैं. तो हमें पाइथन इंस्टॉल कर लिया, स्क्रिप्ट हमने लिख ली, कोड हमारा रन हमने एक जगह लिख लिया. अब जैसे कि हमारे पास विंडोज में टेक्स्ट एडिटर होता है, तो आप टेक्स्ट एडिटर में आपने कोड लिखा, सेव किया, नाम के पीछे .py लिख दिया. अब मैं चाहूँगा आपका जो पावर शेल होता है ना, आप लोगों को पता होगा पावर शेल करके कुछ चीज़ होती है विंडोज़ में, वहाँ पे मैं जाऊँगा python.py.
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेन डॉट पी वाई मुझे रन करना है, मैं वहाँ पे लिखूंगा पाइथन स्पेस लाइक आई हैव समथिंग ऐसे करके कुछ लिखूंगा मेन डॉट पी वाई। तो अगर ये वाली स्क्रिप्ट मैं रन करूंगा देन ये जो मेन डॉट पी वाई के अंदर कोई भी प्रोग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। बट हमें वो सब अभी नहीं करना है, उतना सब हम आएंगे जब हम सेल या फिर टर्मिनल पे बात करेंगे तब हम एक्सप्लोर करेंगे हमें। अभी फिलहाल के लिए बस छोटा सा वो दे रहा था, कंफ्यूज मत होना ना। तो जैसे कि अब हमें जो बिल्कुल फॉर एग्जांपल देयर आर सम पीपल जिनको अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने एक्सप्लोर नहीं किया, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पाइथन में कुछ भी लिखना है देन फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट राइटिंग टेक फ्यूजन। कोई मुझे बताएगा ये सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा करेगा कौन बोल रहे नहीं करेगा, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वेरिएबल है, अभी वहां पे डिफाइन ही नहीं है पहले से। तो अगर मुझे टेक फ्यूजन प्रिंट करना हो, अच्छा टेक फ्यूजन नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, 2.0 प्रिंट करना हो तो कैसे करेगा ये प्रिंट? तो इसके ऊपर रैपिड अराउंड द कोड्स। Okay, look, whenever you are printing anything in Python, first आपको एक टेक्स्ट प्रिंट करना है। आपको अभी आपको वेरिएबल अभी आपने मैंने अभी बताया नहीं, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को नहीं पता वेरिएबल क्या होता है। बट अगर मुझे ऐसे ना अपने जो शेल पे प्रिंट करना है वेलकम टू टेक फ्यूजन 2.0, तो अगर मुझे ये चीज प्रिंट करनी तो मैं प्रिंट तो लिखूंगा, पैरेंथेसिस भी लगाऊंगा, ब्रैकेट्स मतलब जो मैं ये स्मॉल ब्रेसेस यूज कर रहा हूँ ये भी यूज करूंगा। बट इनके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे सिंगल ब्रेसेस या फिर डबल ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। जब मैं इसको यूज करूंगा तो जो यहाँ पे आप देखोगे तो आउटपुट में वेलकम टू ये आ जाएगा। अब जिन लोगों को पता है उनसे आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि कोई मुझे बताएगा कि सिंगल ब्रेसेस और डबल ब्रेसेस दोनों पर रन करता है? ठीक है, आप देखो यहाँ पे आइदर यू यूजिंग सिंगल और डबल ये काम करेगा, ठीक है। बट सिंगल और डबल में कोई डिफरेंस है? I think there is no difference unless you want to put some text inside that has double quotes. Then you will wrap it in single quotes. गुड। And if तो you want to बेसिकली do otherwise, that's लुक होता क्या है कि जब आपको एक के साथ डबल कुछ दो टेक्स्ट यूज करने होंगे तब हम देखेंगे कि हम कैसे सिंगल एंड डबल कोट दोनों को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डबल, फिलहाल अगर आपको सिर्फ एक आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है, प्रिंट लिखा डबल कोट लगाया प्रिंट हो गया, तो इसमें हमें कितनी मेहनत पड़ी? कुछ नहीं पड़नी मेहनत पड़ी स्टिल। अब मैं बस इतना करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मैं पाइथन प्रोग्रामर हूँ, क्यों भाई प्रिंट तो कर ही लिया तो कुछ कुछ तो आई गया, तो स्टिल आई एम अ पाइथन प्रोग्रामर। बट अगर सेम काम आपको सी में करना होता कि बोलने के लिए कि भाई मैं सी प्रोग्रामर हूँ, तो मैं कैसे करने जाता? सबसे पहले मुझे यहाँ लिखने पड़ते बड़े अक्षरों में हैशटैग इंक्लूड, फिर उसमें कुछ तो भी होता है आप देखेंगे stdioh, फिर वो लिखने जाऊंगा फलाना ठिकाना, बहुत सारा लंबा सा हो जाता है। पहले मैं studio.h लाइब्रेरी को डालूंगा, फिर मैं मेन को डिफाइन करूंगा, फिर मैं प्रिंट एफ लिखूंगा, फिर कंटेंट लिखूंगा। तो सिर्फ ये लाइन प्रिंट करने के लिए मुझे अराउंड 4 to 5 लाइन्स इंसर्ट करनी पड़ जाती हमारे ये मेन कोड के अंदर। इसलिए हम क्या करते हैं, इनिशियली जब भी हम प्रोग्रामिंग किसी को स्टार्ट करनी हो तो हम बोलते हैं पाइथन से करो जल्दी समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप एल्गोरिथम पे फोकस कर रहे होते हैं, वहां पे आप सिंटेक्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट लाइक इट इज आपको ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग पता है? किसी को ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग करके कुछ होता है? ब्लॉक बेस्ड कभी सुना है? अच्छा, आपने वो ऐड देखा था टीवी में आता था व्हाइट हैट जूनियर के कि बच्चों ने ऐप बना लिए, बच्चों ने प्रोग्राम बना लिए, वो देखा था कभी कि बच्चे डेवलपर बन रहे थे कुछ आज से 4-5 साल पहले? ये सर। तो पता है वो होता क्या है बेसिकली, लुक प्रोग्रामिंग को पहले जब इनिशियली जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी तब तो सब कुछ बूलियन के थ्रू होता था, फिर टेक्स्ट पे आया। बट करंट एरा में प्रोग्रामिंग को समझाने के लिए एक और नई खुराफात आ गई है, दैट इज ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके पास ना सीधे ब्लॉक्स होते हैं कि
Let me show you. बच्चों वाली चीज़ें still I will show you. For example, there is a website. ये वेबसाइट आपको दिख रही है? मैंने वेबसाइट स्विच की, कुछ चेंज हुआ? आई गेस नहीं चेंज हुआ. No, sir. Okay. Let me share it again. ना आपको ये दिख रहा होगा. दिख रहा है? होता क्या है, 4H4+, A7+, 12+, बाय नोटबुक, बाय एडिटर. तो इन्होंने ना पूरी प्रोग्रामिंग को ही मतलब ऐसे समझिए कि बच्चों को समझाने के लिए ब्लॉक्स ही बना दिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ब्लॉक्स पे क्लिक Scratch करूंगा, किया है some. यस ये स्क्रैच ही है. तो स्क्रैच ही है, ऑलमोस्ट स्क्रैच का ही एक अपडेटेड वर्जन पिक्टो ब्लॉक्स है. तो बेसिकली व्हाट दे आर यूजिंग द ब्लॉक्स. फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग दिस स्प्राइट, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, इवेंट्स में जाऊंगा, कंट्रोल में जाऊंगा, देखो रिपीट है. रिपीट मतलब क्या, हमारे लूप्स हैं, इफ कंडीशन है, इफ एल्स है. तो ये भी प्रोग्रामिंग ही है. बट फॉर दोज जो सिंटेक्स को नहीं समझ सकते, जो बच्चे हैं अभी, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं. सिमिलरली जब आप एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर आप ये मान लीजिए जब आपको एकदम से आपको स्टार्ट ही करना है प्रोग्रामिंग, तब हम सजेस्ट करते हैं देन गो फॉर द पाइथन, क्योंकि पाइथन की जो सिंटेक्स है वो आपको आसान पड़ जाती है. ठीक है. अब आपको जब सेटअप करना होगा पाइथन, इज माई स्क्रीन विजिबल, कुछ है स्क्रीन पे? नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्विच टू जूम बिकॉज यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है. इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. थैंक यू. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको अगर पाइथन सेटअप करना है तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा. python.org करके वेबसाइट है, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा. अब उसके बाद अगर किसी को पाइथन आती है बट बेसिक्स किए हैं, बट आपको अगर पाइथन डेवलपर बनने का कुछ सपना है, तो आपको ना एक स्पेसिफिकली, बच्चे क्या करते हैं, आईडी जब इंस्टॉल करने की बारी आती है ना, तो उसे ना बहुत हल्की चीज मान लेते हैं कि आईडी क्या, कुछ भी यूज कर लो, आईडी तो है, कंपाइलिंग तो करना है, डिबगिंग ही तो करना है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं. No, it's not like that. Whenever you are specifically working on any sort of parts of Python, you have specific IDs for all specific tasks. VS कोड जो होता है, जनरली आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो एक VS का कोड करके होता है जिसपे आप ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एक्सटेंशन इंस्टॉल करके सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं. बट पाइथन में बहुत सारे होते हैं जो स्पेसिफिकली पाइथन के लिए ही डेवलप होते हैं. सच एज मैं आपको अभी 2-4 बताता हूँ. पहला एक होता है, यहाँ पे टाइप करूंगा IDLE. अब होता क्या है कि जब हम पाइथन में वर्क करेंगे तो एक हो गया IDLE, आप पाइचार्म भी ले लीजिए, सॉरी पाइचार्म भी ले लीजिए, पाइचार्म के बाद जुपिटर भी ले लीजिए. तो ऐसे बहुत सारे आपके पास होते हैं आईडी, बट सबके ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपको लॉन्गर प्रोजेक्ट्स करने हैं. आपको मान लीजिए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप ML के मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं और उनके कोड्स हैं 1000, 2000, 10,000 लाइन्स के. जब भी हमें कोई लॉन्गर प्रोजेक्ट्स करने होते हैं देन वी प्रेफर पाइचार्म, क्योंकि पाइचार्म क्या करता है, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कंपैरिजन टू ऑल अदर आईडीज इसकी ज़्यादा है. ये हैंग नहीं कर जाता कि अगर इसको आप 10,000 लाइन देने जाओगे इट इज़ नॉट गोना हैंग. तो आपके जो पीसी का अगर रैम या स्पीड कुछ भी कम होती है, अगर आपकी पीसी की जो स्पेसिफिकेशंस है अगर वो लोअर है, देन यूज पाइचार्म, क्योंकि पाइचार्म इज डिजाइन कि आप इज डिजाइन फॉर द यूज केस कि आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर करने हैं, थाउजेंड्स ऑफ द लाइन्स, तो आसानी से आप पाइचार्म का यूज कर सकते हैं. बट जब हम डेटा रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें विजुअलाइजेशन करना है, या फिर हमें ग्राफ जनरेट करना है, या फिर हमें डेटा एनालिसिस करना है, डेटा साइंस रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो हम प्रेफर करते हैं जुपिटर नोटबुक को. जुपिटर नोटबुक आपको उस टाइम हेल्पफुल होता है. कैसे होता है, क्या होता है, वो जब आप यूज़ करेंगे दो आईडीज तब कंपैरिजन कर सकते हैं. वो मैं ऐसे नहीं बता सकता, वो आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता पड़ेगा. बट मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ कि इनकेस अगर जब आपको सेलेक्ट करना पड़ा कि आप कौन सी आईडी यूज़ करें, तो जुपिटर नोटबुक
हमेशा प्रेफर करना जब भी आपको ML या AI रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा तब। अगर बड़े बड़े कोड लिखने हैं ऐप डेव के लिए, वेब डेव के लिए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर की कोई भी चीज़ बैकएंड लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, देन प्रेफर करना पाइथन। ठीक है ना। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अगेन जिसके पास नोटबुक है नोट करते रहना। ऑल्दो जो भी मैं बोल रहा हूँ आई विल ट्राई कि वो सारे नोट्स मैं आपको देता रहूँ। ड्राइव लिंक जो मैं बोल रहा था क्योंकि आज कोई कंटेंट नहीं था कल, दैट्स व्हाई आई हैवंट एडेड एनी ड्राइव इन द डिस्क्रिप्शन, बट टुडे आई एम गोना ऐड द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपके सारे जो भी नोट्स होंगे डेली के, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो ऊपर से जो लोग आलसी होते हैं तो उनको मिल जाएंगे वहाँ पे। अदरवाइज आई विल आस्क यू, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ड्यूरिंग सेशन ही नोट्स जनरेट करते रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जाएंगे तब आता है यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कौन बताएगा? बाकी लोग भी तो यार, आप लोगों को वेरिएबल्स तो पता ही होगा एटलीस्ट। मैं अभी कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं पूछ रहा हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं कौन बताएगा? ऐसा नहीं कि डेटा स्टोर करते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स में कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। जैसे कि मैं बच्चा, मुझे नहीं पता कोडिंग ही क्या होती है, फिर उसको आप कैसे समझेंगे वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरीके से मेमोरी में डब्बा होगा जिसमें हम चीजें रख सकते हैं। अब वो चीजों का अलग अलग डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप मतलब वो नंबर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, ऐसे हुआ। ओके, एनीवन एल्स? किसी को और कुछ ऐड करना है? लुक, वेरिएबल्स जब हम डिफाइन करने जाते हैं तो एज यू सेड डब्बा होता है। उस डब्बे में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम एंटरिंग इन माय किचन और सारे के सारे डब्बे एक जैसे हैं, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि किस डब्बे में क्या है? देन आई एम गोना पुट द लेबल। तो वो क्या होता है? वेरिएबल का नाम होता है। और हर एक वेरिएबल में, जैसे किसी में मैंने कुकीज़ रख दिए, किसी में मैंने चॉकलेट्स रख दी, किसी में मैंने कैंडीज़ रख दी, किसी में मैंने शुगर रख दी, तो वो शुगर, कैंडीज़ और जो भी चीज़ें मैं रख रहा हूँ, दे आर द डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ दोज डब्बा। ठीक है, तो जो डब्बा हो गया वो आपका वेरिएबल हो गया। डब्बे पे जो लेबल हो गया वो आपका वेरिएबल नेम हो गया। डब्बे के अंदर जो रखा है वो क्या होगा? डेटा टाइप। ठीक है, तो ये तो होगी बच्चों वाली बातें। बट वेरिएबल्स में जब हम पाइथन में बात करते हैं ना, तो पाइथन कसम से ना ऐसे जब आता है ना तो बात भगवान है। क्योंकि सी में जाओगे ना तो हर एक वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो। पाइथन बोलता है प्रोग्रामिंग पे ध्यान दो, बाकी सारा काम हम खुद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाने जा रहे हो, मैंने लिखा यहाँ पे बैच इक्वल्स टू 2, मेरा वेरिएबल बन गया। कुछ नहीं करना मुझे और कुछ लिखना है, जैसे कि सिंपल a इक्वल्स टू 2, वेरिएबल बन गया, कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, वो रूल्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इफ यू आर बिगिनर। वो रूल्स क्या होते हैं कि अच्छा चलो एक क्वेश्चन सबको, BATCH इक्वल्स टू 3 और 2। चलो, सो लाइन नंबर 1 में मैंने लिखा है बैच इक्वल्स टू 2, सेकंड में भी लिखा है मैंने बैच इक्वल्स टू 2। बोथ ऑफ देम आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड होते हैं। हाँ, डिफरेंट है, डिफरेंट है। क्यों? स्ट्रिक्टली टाइप्ड रहते हैं वेरिएबल्स। तो अगेन पाइथन इज आल्सो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पे बी कैपिटल लिख रहे हो तब भी डिफरेंट है, बी स्मॉल लिख रहे हो तब भी डिफरेंस है। तो बैच इक्वल्स टू 2 विद द लोअर केस, दैट इज डिफरेंट थिंग। बैच विद बी कैपिटल, दैट इज आल्सो डिफरेंट वेरिएबल। समवन इज जॉइनिंग राइट नाउ। ओके, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल होते हैं कि जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ कि आपको जैसे लिखना है बैच इक्वल्स टू 2, बट आपको यहाँ इनिशियली लिखना है टेक फ्यूजन बैच इक्वल्स टू 2। ये करेक्ट है कि नहीं है? जल्दी बोलो। गलत है। गलत है। क्यों गलत है? कि हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते, हमें अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए ये करेक्ट है कि नहीं है? गलत है। नो सर। ये भी गलत है, क्योंकि हम इनिशियली से जनरेट नहीं कर सकते, हमेशा एक लेटर से ही स्टार्ट करना होता है वेरिएबल। हम बिना लेटर के कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ तो मैं जैसे 2 लिख रहा हूँ, बट होता क्या है कि
फॉर एग्जांपल हम जब भी डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो इनिशियली पाइथन में हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, पाइथन अपने आप ही बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2.2, c इक्वल्स टू नेम या जो भी, d इक्वल्स टू इज, ऐसे लिखता है, इज रजिस्टर्ड ट्रू। तो ये जो आपको 4 चीजें दिख रही हैं जनरली यही हैं हम जो जनरली यूज करेंगे, या पाइथन में आगे हम देखेंगे और भी कितने टाइप्स होते हैं डेटा के, बट ये है बेसिक टाइप। 2 पाइथन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, पाइथन अपने आप ही समझ लेगा। अगर आप 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ लिख रहे हैं, पाइथन समझ जाए कि हाँ भाई आप इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे NAME सिंपल आपने कहीं टेक्स्ट लिख दिया, पाइथन समझ जाएगा कि आप किसका यूज कर रहे हैं। आप एक अच्छा c इक्वल्स टू नेम ठीक लिखा है मैंने? No, sir. थैंक यू। तो जब भी हम कभी पाइथन में एक ना, ये एक अच्छी बात है और एक बुरी भी बात है क्योंकि अक्सर लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब इस बेटिंग की कोई मेंशन करेगा। होता क्या है कि अगर आप सी या कोई भी लेटर बिना इसके लिख देते हो, ठीक है, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? वो वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। Until unless you are not using inverted commas, then वो क्या कंसीडर किया जाएगा? वो एक वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपको टेक्स्ट लिखने वाले हो, कोई स्ट्रिंग बोलते हैं, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, आप वो लिखने वाले हो, then you have to use either single और double inverted commas, वरना आप इनको पाइथन समझेगा कि ये तो वेरिएबल लिखा है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये कोई कंटेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो पहला वाला हमारे यहाँ क्या हो गया? ये हो गया हमारा टाइप इंटीजर। आप यहाँ देखेंगे ये क्या हो गया? एक और होता है फ्लोट, यानी कि जितने भी वैल्यूज होती है हमारे पास 2.1, 2.2, 001 डेसिमल पॉइंट जहाँ पे भी आ जाते हैं वो आ जाते हैं फ्लोट में। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद यहाँ आ जाता है, ये होता है बूलियन। यानी कि जब भी हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स की, फॉर एग्जांपल अगर रजिस्टर किया है, इफ इट इज इक्वल्स टू ट्रू देन बूलियन में आएगा, फॉल्स तब भी बूलियन में ही आएगा। 2 ही केस होते हैं बूलियन में, जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, आइदर इट विल बी ट्रू आइदर इट विल बी फॉल्स। ओके, नाउ एक और होता है कमेंट। कमेंट जैसे कि अभी मैं यही लिखने जा रहा हूँ, पाइथन को थोड़ी ना पता है कि मैं ये फिजूल में लिख रहा हूँ, इसका कुछ मतलब नहीं होता है ना। हम क्या यूज करते हैं? कमेंट। कमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैशटैग। हैशटैग का मेन यूज कुछ नहीं होता है। जब आप बड़े बड़े कोड लिखते हो, जब आपको कोड कहीं शेयर करना होता है या किसी को समझाना होता है, देन होता है कि आपको खुद नहीं पता कि ये लाइन आपने किस लिए लिखी है, देन यू नीड टू पुट सम हाईलाइटिंग पॉइंट्स, मार्कर्स, कि इसका मतलब ये है, इसको मैंने इसलिए यूज किया या फिर इसको मैंने इसलिए यूज किया। तो वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैशटैग। हैशटैग आप लिखोगे तो पाइथन बस a इक्वल्स टू 2 यहाँ तक पढ़ेगा, इसके बाद ये इसको इग्नोर कर देगा क्या लिखा है, तो हमारे कोड में एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कि अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू -2, ये इंटीजर है या फिर फ्लोट है? इंटीजर। पता माइनस से कुछ डिफरेंस तो नहीं आता? ओके, सो बेसिकली जब भी आप माइनस से -3 कुछ लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का जो टाइप है वही रहने वाला है। दूसरा इसमें 2 केस होता है, ट्रू फॉल्स। अब ये हो गए बेसिक्स जिनको एक्सप्लोर करना था। अब हम आते हैं थोड़ी चीज़ें जो आती हैं प्रोजेक्ट्स में, जो आते हैं हमारे इंडस्ट्री लेवल पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक किसी ने, जो मैंने कल जब पूछ रहा था तो कुछ बच्चों ने एक्सप्लोर नहीं किया था प्रोग्रामिंग अभी, तो अगर आपको कोई डाउट आता है, अगेन आई एम मेंशनिंग, प्लीज रेज योर हैंड्स, पुट इट इन द चैट बॉक्स। बोलना नहीं है तो देन व्हाटएवर इज कंफर्टेबल विद यू, बट एटलीस्ट आस्क। बैच की स्ट्रेंथ 25 रखने का कुछ तो फायदा हो, वरना फिर सारे लोग जब 2 ही 3 बोल रहे हैं तो फिर फर्क हम कंसिडर ही करेंगे, बाकी सारे लोग तो बस देख ही रहे हैं।
तो फिर वो 100-150 सारे दोनों बैच हम कंबाइन करके चलाएं, क्या ही फायदा है, क्या ही फर्क पड़ता है हमें, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, देन सिंपली पुट इट इन द चैट बॉक्स, रेज योर हैंड, आस्क व्हाटएवर you think feasible for you. Okay. अब as I was mentioning कि वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास, वो सिर्फ लेबल्स होते हैं। अब ये लेबल्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे समझिए, मेमोरी पता है, मेमोरी नाम की कुछ चीज़ होती है जब हम पाइथन में कुछ स्टोर कर रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी लाइन आप लिखने चाह रहे हो, 1 2 3 4 5, वो मेमोरी में स्टोर होता जाता है और हर एक वेरिएबल एक मेमोरी को स्टोर पिन करता है। अगर मैंने a = 2 लिखा, a = 3.5 लिखा, b = 4 लिखा, c को, तो ये सारा जो मैं स्टोर कर रहा हूँ 2 3 4 5, ये एक मेमोरी डिफाइन हो जाती है। क्योंकि जब मैं उस वेरिएबल को आगे यूज करूँगा तो एज ए कंपाइलर ये नहीं ढूंढूंगा a = 2 कहाँ है, b = 3 कहाँ है, मैं ढूंढूंगा ये वाला मेमोरी एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी होगी उसको मैं उठाऊंगा और जो भी मुझे यूज करना होगा मैं उसमें यूज कर लूंगा। और जैसा मैंने बताया कि पाइथन का जो वेरिएबल हम लिखते हैं वो डब्बा के ऊपर एक लेबल होता है, तो वेरिएबल्स आर लाइक अ लेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ x = 10, तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया सेम। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और वेरिएबल y = x, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो। y को x का वैल्यू असाइन हो जाएगा। one more thing, हाँ they point to the same memory location, y and x. यस, तो जो y और को x की वैल्यू मिल जाएगी, उसका रीजन यही होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉइंटिंग एड्रेस होगा मेमोरी का, कि आप वो डब्बा मम्मा बताते ना कि उस जगह पे रखा हुआ है, तो वो सेकंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे, तो जो एड्रेस होता है वो y का और x का सेम हो गया। मैं यहाँ पे वैल्यूज ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। Look, whenever you are putting some type of values here, for example यहाँ पे मैंने x = 10 लिखा, y = x लिखा। if I am saying कि y की वैल्यू 10 हो गई, then I am a beginner। अगर मैं बोलूंगा कि y और x के दोनों का एड्रेस मैंने सेम किया है, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर वैल्यूज नहीं किए। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने x की वैल्यू y को दे दी, इट इज ट्रू, कोई गलत बात नहीं है। बट अगर सेम लाइन को आप चेंज करोगे एक इंटरव्यू में कि मैंने y को x की मेमोरी का एड्रेस दे दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग में हम यही करते हैं कि यहाँ पे मैं एड्रेस शेयर कर रहे होते हैं, वैल्यू शेयर नहीं कर रहे होते हैं। वैल्यू तो एक बार हमने जो यहाँ पे जो रख दी, पॉइंटर असाइनमेंट इन सी, आप रुक जाइए, हम पॉइंटर्स पे भी बात करेंगे। पॉइंटर असाइनमेंट अलग चीज हो गया, क्योंकि पॉइंटर्स एक पूरी अलग कहानी है। यहाँ पे जब हम मेमोरी को लोकेट करते हैं पाइथन में, तब वो अलग कहानी। वो सिंपल है कि आपने एक जगह पे कुछ रख दिया, बस वापस से आप उसको एक लेबल देके चले आए हो। यहाँ पे मैं पॉइंटर वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट लेबल वर्ड ही यूज होता है कि इस 10 नंबर की वैल्यू को मैंने एक लेबल दे दिया, उसके मैं लेबल को मैंने एड्रेस एक है, उस एड्रेस को मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका एड्रेस चेक करना हो, कैसे चेक करूंगा? Any idea? I couldn't understand it. Okay. Look, what I was saying, आप ऐसे समझिए, आपने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल apple = 10। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ, स्पेलिंग गलत हो तो मुझे कुछ मत बोलना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा apple = 10 इनिशियली, तो मेरे पास कितने एप्पल्स हुए? 10। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा apple = orange। ठीक है, इतना लिखने के बाद अगर अब कहीं पे भी मान लीजिए मैं कोड लिखता गया, अब मैं 105th लाइन पे हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑरेंज, तो अब कंपाइलर को पता होगा कि एप्पल = ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज भी कितने हैं? 10, और कुछ नहीं है। इसका मतलब कि एप्पल अगर 10 है और एप्पल = ऑरेंज है, तो वो उसका मतलब भी क्या हुआ? 10। सिंपल सी चीज, a = b, b = c, देन a = c।
यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखने चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बस लिखने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एप्पल इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू ऑरेंज, तो बस इतना ही किया मैंने, दोनों की वैल्यूज को इक्वल इक्वल लिख दिया है कि एप्पल इक्वल्स टू 10 है, एप्पल इक्वल्स टू ऑरेंज है, यानी कि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, ठीक है। और वैल्यू सेम क्यों हो जाती है, क्योंकि दोनों की जो एड्रेस होता है कि जहाँ पे एक चीज रखी हुई थी वहीं पे मैंने बता दिया कि अगर आपको एक डब्बे में मैंने ये मान लीजिए कि स्नैक्स रखे हुए थे कुछ, जहाँ पे बिस्किट्स रखे हुए थे वहीं पे मैंने कैंडीज रख दी, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि ऐसे बोलूंगा जहाँ पे बिस्किट रखे हुए वहीं पे कैंडीज रखी हुई हैं और कुछ नहीं, उसी को बोलते हैं एड्रेस सेम जगह पे है, ठीक है, एक ही जगह पे दो चीज रखी हुई है। अब ये चेक करना हो तो कैसे करेंगे, ये बड़े बड़े वर्ड्स को हटा देते हैं। We'll use ID function. हाँ, We'll use ID function. यस, वी विल सिंपली यूज आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे इसका प्रिंट करना होगा तो मैं प्रिंट करूंगा आईडी ऑफ एक्स, है ना। तो जब भी मैं ऐसे प्रिंट करूंगा आईडी ऑफ एक्स, तो इसमें क्या प्रिंट होके आ जाएगा, नॉर्मली इसका जो एड्रेस होगा, दोनों का एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए जो मैं बोल रहा था, ठीक है। 133777 कुछ तो भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मैं अब लैक्स और बिलियंस में कन्वर्ट नहीं करूंगा, बट आप देखोगे तो ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी मेमोरी है और दोनों की मेमोरी पर सेम एड्रेस लिखा हुआ है। आगे समझ कि y इक्वल्स टू एक्स करने का मतलब क्या होता है। थम्स अप कर दिया करो यार प्लीज, दिल को अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, बस किडिंग, लुक बस बस ठीक है समझ गया। अब एक और मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ किया x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो मुझे एक बात बताइए, इसका एड्रेस में कोई फर्क आएगा क्या। अब अगर मैं रन करूंगा तो क्या फर्क आएगा, कुछ फर्क आएगा क्या। यस आना चाहिए उसे, आना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्यों आना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है अब। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, अब एक बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स रखने थोड़ी ना चाहोगे। इफ यू आर सिंपली मैनिपुलेटिंग एनी वैल्यू ऑफ द डेटा, अगर आप डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो जो आपने पहले दे रखा है, देन इसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं। और पाइथन का ना एक और रूल होता है इसका कि ये क्या बोलता है कि मुझे जो पहले बता दिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में कुछ चेंज कर दिया ना तो मैं भूल जाऊंगा ये क्या था, मैं भूल ही जाऊंगा ये क्या था, कि इसकी अगर मेमोरी लोकेशन, क्योंकि अब ये अगर इसको मैं हैशटैग कर दूं, फॉर एग्जांपल ये पूरी लाइन में गायब कर दूं, तो ये क्या प्रिंट कर रहा था, ये वाला एड्रेस, ठीक है। ऐसा मैं समझना कि पहले तो 32 आ रहा था, लास्ट में 22, ये तो चेंज हो गया, जब भी आप रन करोगे हर बार एक नया एड्रेस होगा, बट सेम है। अब पाइथन में अगर ये होता है कि अगर मैंने ये लाइन में कोई चेंज किया, थर्ड लाइन में x की वैल्यू पे अगर कोई चेंज कर दिया, तो अब ये प्रिंट करेगा जो x की वैल्यू वो ये वाली लाइन का करेगा, यानी कि अर्लीस्ट जो पहले लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि जो बाद में लिखा है उसको भी, वो उसको भूल जाएगा, अगर पहले जो लिखा है उसकी ही वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, अब किसी वैल्यू, अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तब ये वैलिड है, अब मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो ये क्या है, वैलिड है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आना है, समझ रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पे हैशटैग लगाने जाऊंगा तो वो, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाऊंगा तो वो x प्रिंट कर देगा, बट अगर सिर्फ प्रिंट x करूंगा तो x वेरिएबल की जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, छोटी मोटी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हैशटैग करके इसको गायब कर देता हूँ तो ये प्रिंट क्या करेगा, 10, यानी कि अगर ये लाइन लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और पाइथन का अगर प्रिंट यहाँ पे लिखूंगा तो ये हमेशा अपडेटेड वैल्यूज ही प्रिंट करेगा, ठीक। दूसरी तरह से समझना हो, यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 10 लिखा और यहाँ पे x इक्वल्स टू 15 लिखा तो x की वैल्यू चेंज कर दी, तो अब यहाँ पे 10 की बजाय 15 ही प्रिंट होगा। गुड, कोई डाउट यहाँ पे कुछ भी। ओके, अब एक और ये तो हो गई बहुत बहुत बेसिक चीजें ना, एक और चीज होती है कि अगर मुझे
वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू स्वैप करनी है विदाउट अ टेम्परेरी वेरिएबल। ये बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में। मतलब जब कोई बेसिक इंटरव्यू चल रहा होता है ना, कि आपको क्या करना है, आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं। ये तो शायद हमें पढ़ाया भी जाता है, करिकुलम में भी होता है। अगर किसी को याद है कि अगर मुझे 2 वैल्यूज चेंज करनी है, मतलब ए की वैल्यू बी को देनी है विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, कर सकते हैं क्या विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल? Yes. Yes, we can do it. तो कैसे करेंगे? Write a comma b equal to b comma a. perfect okay, so whenever we are using swapping, इसको हम बोलते हैं, आप ऐसे अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको एक वर्ड यूजिए, लिख लीजिए स्वैपिंग वेरिएबल। तो ये एक अलग से टास्क होता है, एंड ये ना हम इंटरव्यूज में पूछा जाता है कई बार, जब बेसिक चीजें चल रही होती हैं कि आप अच्छा बताओ कि वैल्यूज आपको चेंज करनी है तो आप कैसे करने जाओगे। मैं क्या कह रहा था, इसको ऐसे समझिए, अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे a की वैल्यू b को देनी है, b की वैल्यू a को देनी है। जनरली अगर मैं कुछ करने जाऊंगा तो मुझे ना एक टेम्परेरी वेरिएबल लिखना पड़ेगा, कि मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू c, फिर c इक्वल्स टू 10, या कुछ भी करूंगा टेम्परेरी वेरिएबल। अच्छा, ये आप इस असाइनमेंट में लिख लेना, अगर जो बिल्कुल बिगनर्स हैं आप ट्राई करना कि जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ उसके अलावा आप कैसे कैसे वैल्यू स्वैप करेंगे। वैल्यू स्वैप करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं अभी यहाँ प्रिंट करूंगा a, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 5। मुझे चाहिए कि जब मैं प्रिंट a करूँ तब 10 आए, 5 ना आए, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि इसमें क्या है, ये लो हो गया, होगी स्वैप, अब यहाँ पे 10 आ जाएगी, ये मत करना, इसको स्वैप नहीं बोलते, आपने वेरिएबल ही चेंज कर दिया। आपको स्वैप करनी वैल्यूज ट्राई करना कैसे करते हैं, बट जो टेम्परेरी वेरिएबल्स आप बनाएंगे उनके बिना अगर आपको कुछ करना है तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे a कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, ठीक है। अब अगर आपने ये कर दिया, फिर आप वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रिंट a। सही है, ये कुछ दिक्कत तो नहीं है दानिश, अगर सही मैंने नाम बोला तो? सही है सर। सही है पक्का? हाँ पक्का सही है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे करूंगा तो प्रिंट करने पे वैल्यू क्या आ रही है 10। ये चीजें आप याद रखना बेसिक्स की, जब हम बात करते हैं तब ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अगर स्वैप करना है विदाउट यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल तो हम ऐसे करके स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ So, यस प्लीज। so what if we want to print two values, means a value equals to 10 and b value equals to 5 at the same time? What we have to do? आई एम नॉट गेटिंग, यू वांट टू प्रिंट बोथ ऑफ द टाइम? दोनों वैल्यू स्वैप हो चुकी है, एक मिनट लुक, इट्स नॉट लाइक कि एक ही वैल्यू ही स्वैप हुई है। अगर यहाँ पे आप 2 चीजें प्रिंट करने जाएंगे तो अच्छा, आप इसको थोड़ा अगर हम ऐसे लिखने चाहें तो अच्छे से लिखता हूँ मैं, थोड़ा कंजूसी करके यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अरे Okay. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लुक, जब भी आपको 2 चीजें प्रिंट करनी होती हैं एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं, फिर आप 2 चीजें प्रिंट करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी कि ये टेक्स्ट है, ये कोई वैल्यू नहीं है। और अच्छे से लिख देता हूँ, सॉरी मेरी आदत है थोड़ी कंजूसी करने की लिखते टाइम, वरना इसको ऐसे लिखता है वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट हो गया, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी। अब मैं इसको रन करूंगा, अरे एरर आ गया, क्या एरर आ गया, कोई मुझे बताएगा? ए के बाद कॉमा आना चाहिए ना, टेक्स्ट वाले के बाद। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ए के बाद भी कॉमा आएगा और बी के बाद भी यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो एरर नहीं आएगा, अब एरर नहीं आना चाहिए, बोलिए बोलिए, अरे बोलो कोई तो, ठीक लिखा ही है, आएगा पक्का? मुझे नहीं लग रहा है इसमें एरर आना चाहिए, नहीं आएगा। देखो होता क्या है
जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट के बाद कॉमा लिखने का मतलब ये चीज़ यहाँ पे खत्म होगी। जो मैंने ये हाईलाइट किया, ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो गई, एक वैल्यू पूरी वेरिएबल की यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे अगर कॉमा लगा रहा हूँ, यानी मैं एक और लोकेशन पे जा रहा हूँ, एक और लोकेशन पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक पाइथन क्या स्टार्ट करेगा, नई लोकेशन। अब जब नई लोकेशन स्टार्ट हो चुकी है तो उसके बाद भी सेम चीज़ मैंने लिख दी, ठीक है। तो जब हम कॉमास का यूज करते हैं एक ही प्रिंट में बहुत सारी चीजें करने के, अब लिखने के लिए तो मुझे कुछ नहीं था कि मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता प्रिंट वैल्यू ऑफ बी, नेक्स्ट लाइन लिख लेता, उसके बाद दोनों चीजें प्रिंट हो जाती। बट अगर आपको चाहिए कि आप कॉमास का यूज करके बहुत सारी वैल्यूज आप प्रिंट करना चाहते हैं, तब आपको कॉमास ध्यान से लगाने होते हैं। एक बार कॉमा लगा देने के बाद अब आप कुछ भी लिखेंगे वो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, दूसरी बार कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नित्य आप पूछ रहे थे कि ए की वैल्यू ही चेंज होगी या बी की वैल्यू चेंज होगी? दोनों की वैल्यू चेंज होगी। ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए का मतलब हो गया कि मैंने दोनों की वैल्यूज क्या कर दी, स्वैप कर दी। अब जिन लोगों को पाइथन में ठीक ठाक आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप मुझे बताएंगे कि कल में अगर मुझे याद रहा मैं लिख लेता हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है कि मुझे 2 की बजाय मैं याद कर लिख लेता हूँ, जिससे मैं कल याद रखूँ पूछने के लिए। 3 वेरिएबल्स अगर मेरे पास है, अगर उन तीनों की वैल्यू मुझे स्वैप करनी है, क्या वो भी पॉसिबल है? और अगर है तो फर्क क्या आता है 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल? तो ये कल मैं पूछूंगा, आप घर पे ट्राई करके देखें, 3 या 4 या 5 जो भी, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन कुछ भी? सर आपने जो अभी ये क्वेश्चन बोला ना कि 4 वेरिएबल, वो कल ओके आज ओके का, ठीक है। हाँ नित्य बोलिए। Sir, can we use reverse slash n in Python also, as we use in C program to print in a single line? नो नो नो, अब वो भी अलग चीज होती है। सी प्रोग्रामिंग और सी पाइथन में बहुत सारे डिफरेंस हैं, वो धीरे धीरे करके हम देखेंगे, अभी मैं वो कंबाइन नहीं करूंगा, ठीक है। रिवर्स स्लैशेस आप न्यू लाइन के लिए बोल रहे हैं? Yes, sir. स्पेस, हाँ, तो न्यू लाइन और स्पेस के लिए भी आप जो भी आपके दिमाग में आए ना, आप सीधा पुट करिए प्रैक्टिस के टाइम पे, और वो आप देखिए कि क्या एरर्स उसमें आते हैं। वो एक एक करके हमें पॉइंट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जो भी दिमाग में आ रहा है पुट करिए, बट हाँ ये मान के चलिए कि पाइथन और सी में बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है। आप ये आपका साइन है, आप ट्राई करिए डबल स्लैशेस पे क्या आता है, ठीक है। नाउ एक होता है जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, तब स्वैपिंग वेरिएबल्स के बाद एक और बेसिक चीज आती है, टाइप एंड डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। टाइप क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे आईडी फंक्शन यूज कर रहा था एड्रेस देने के लिए, वैसे ही अगर मुझे कभी कहीं पे वेरिएबल्स का मुझे नहीं पता कि मैंने b इक्वल्स टू कुछ लिख दिया, मुझे नहीं पता ये कौन सा टाइप है, देन आई विल सिंपली यूज अ टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल का टाइप बता देता है। सॉरी, मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट के बाद वापस से टाइप के बाद वापस से मैं यहाँ लिख दूंगा x। तो जब मैं ये रन करूंगा तब मुझे, अरे यार फिर से एरर आ गया, क्या हो गया बताइए जरा, कोई बताएगा? सर एक्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम करते जाते हैं ना, तो सच में बोलूं कि हमें याद ही नहीं रहता कि एक्स और वाई में रहता है एक्स और वाई, पता नहीं क्यों आदत ही बन जाती है ऐसे प्रोग्रामर। ए और बी आपने एक बार लिख दिया ना, तो ये एरर पूरा हम कोड पढ़ते रह जाते हैं, एरर क्या आया, ठीक है। तो वो मत करना, बट हम रहते हैं एक्स और वाई पे हमेशा। अब क्या हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो जब हम टाइप फंक्शन यूज करेंगे तब ये इसकी क्लास बता देता है इंट। अगर एक ही वैल्यू में चेंज करने जाऊंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएंगी। सिंटेक्स अगर मैं इसका देखूं सी के हिसाब से या सी प्लस प्लस के हिसाब से, तो वो बहुत टफ है, यहाँ पे आसानी से हम टाइप पता कर सकते हैं। एक होता है एक और चीज टाइप के बाद, वो होता है डायनेमिक टाइपिंग। किसी को पता है डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है? रन टाइम पे वेरिएबल्स का टाइप ये डिटरमाइन होगा। ठीक है, ये सबके लिए असाइनमेंट है, आपको सर्च करना है डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है। डायनेमिक टाइपिंग के बारे में मैं लिख लेता हूँ, कल सारे लोग डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है एक टॉपिक खुद से आप सर्च करके लाएंगे कि डायनेमिक टाइपिंग को हम कैसे यूज करते हैं। एक डायनेमिक टाइपिंग एक और ले लो, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन।
कि स्ट्रिंग का भी क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है। चलो ये कर लेता हूँ, है हमारे पास थोड़ा टाइम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रीड एवरीथिंग। ओके, मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट हाय। नेक्स्ट मुझे अगर प्रिंट करना है, मैं अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे ऐसा समझो कि अगर हमें कोई चीज़ बहुत बार मल्टीप्लाई बहुत बार रिपीट करनी होती है, तो हम लूप के बजाय या फिर कोई और फंक्शन बनाए, क्रिएट करेंगे बार बार रिपीट करने के लिए, एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करने के लिए। तो पाइथन हमें यहाँ पे ना एक अलग से एक एक्सेस दे देता है कि अगर आपको कोई चीज़ बार बार लिखनी है तो आप सीधा लिख सकते हो मल्टीप्लाई करने के लिए, कि आपका जो ये वेरिएबल नेम आपने लिखा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 5, ठीक है। तो हाय 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 हाय, ठीक है, जितनी बार भी लिखूंगा आप यहाँ पे जो कितनी भी बार अगर मुझे यहाँ पे करना है, अब मुझे फॉर लूप बनाने की जरूरत नहीं है, एक और कोई या फिर कोई अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे नंबर लिख दूंगा, जितनी बार भी मुझे प्रिंट करना है उतनी बार मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई अ स्ट्रिंग, देन यू हैव टू से यस, क्योंकि ये एग्जांपल होता है स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का, कि स्ट्रिंग को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाई मल्टीप्लाई बाय हाई इक्वल्स टू हाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाई मल्टीप्लाई बाय नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जनरली सी प्लस प्लस में ऐसे मुझे तो नहीं पता, बट अगर होता हो तो नहीं, ये सिर्फ एक पाइथन की स्पेसिफिक फीचर है, अगर आपको देखना हो तो सी प्लस प्लस में नहीं होता। तो पाइथन हमें क्या अलाउ करता है, ये हमें स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना भी अलाउ कर देता है। अब एक और पाइथन के फीचर होते हैं, जैसे कि ए जो मैं इनिशियली लिख रहा था ना, एप्पल इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू ऑरेंज, सेम अगर मुझे लिखना हो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10, तो इसको क्या बोलते हैं, चेन असाइनमेंट। देखो मैं जितने भी वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, लाइक स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन या फिर कास्टिंग वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, तो होता क्या है, ये सारे वर्ड ही हम जनरली यूज करते हैं जब कोई भी दो प्रोग्रामर बात कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे समझाने जाएंगे ना कि भाई देख, वो एक चीज होती है ना जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रिंग को 2 नंबर से और उनका कुछ आउटपुट आ जाता है, दैट इज टू मच। आप ऐसे अपने कोड को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको वर्ड यूज करने होते हैं। स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन, ये चीज मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10, इसको बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। जब भी हम वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ रख के उनको सबको एक वैल्यू दे देते हैं, देन वी कॉल इट चेन्ड असाइनमेंट, ठीक है। तो वर्ड्स पे स्पेसिफिकली आप ध्यान दीजिए, देन आपकी वोकैबुलरी प्रोग्रामिंग वाली अच्छी हो जाती है। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होती है उतना अच्छा आप इंप्रेशन देते हैं इन एनी इंटरव्यू, ठीक है। तो सिंपल, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ए बी सी करूंगा तो सबकी एक ही वैल्यू प्रिंट हो जानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई फर्क आएगा क्या? सॉरी, ऐसे कोई फर्क आएगा क्या? यस सर, आएगा। आएगा तो क्यों आएगा? क्योंकि 10 को हम c का वैल्यू असाइन कर रहे हैं। गुड, आपने बात की। देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई नंबर यूज कर रहे होते हैं, पहली बात तो ये वेरिएबल बचानी है। चेन्ड असाइनमेंट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो तभी पॉसिबल है जब आप वेरिएबल्स की चेन बनाते हैं। आप नंबर की तो चेन बना ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर थोड़ी ना वेरिएबल है। अगर 10 अलाउ करता है मुझे पाइथन कि 10 को मैं एक वेरिएबल की तरह भी शो कर सकता हूँ, तब ये चीज क्या हो जाती, पॉसिबल हो जाती। इसलिए फिलहाल के हिसाब से हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 को एज अ वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते, और चेन जो बनती है वो हमेशा वेरिएबल की बनती है, ठीक है। तो टिल नाउ कोई डाउट कुछ भी? कोई नहीं, चलो एक और चीज ले लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, डिड यू रियलाइज मैं अभी तक सिर्फ वेरिएबल ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने वहीं पे खत्म नहीं किया। a इक्वल्स टू 5 या b इक्वल्स टू 3 वेरिएबल डिफाइन हो गए।
जो आई गेस कल कौन पूछ रहा था कि बेसिक्स ही पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, तो वो डीप में आ जाते थे प्रोग्रामिंग। तो ये होते हैं स्पेसिफिकेशंस। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे, कल से मैं आपको इसके नोट्स देना स्टार्ट करूंगा, वरना तो ऐसे हम पूरे 45 डेज तक पाइथन ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कल से थोड़ा सा एक्सप्लोर हम फास्ट हो जाएंगे, चीज़ें हम ऐसे करेंगे कि आपको समझ भी आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप बहुत बेसिक हैं, आप खुद से एक्सप्लोर करने जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इनमें ना होता क्या है कि कुछ चीज़ें हमें एज ए डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती हैं, बट वो हमारे अंदर ना एक लूप होल्स बन जाते हैं कि हमें उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ करें जिसमें डाउट्स आए, जिसमें एरर्स आए, और वो एरर्स के यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब कई बार होता है कि आपको पता है कि जो बूलियन होते हैं ना, वो ट्रू और फॉल्स, वो भी एक उसमें होता है कि बूलियन जो वैल्यूज होते हैं ट्रू और फॉल्स, वो भी नंबर होती हैं। ऐसा नहीं समझना होता है कि जो ट्रू और फॉल्स लिखा है वो एक टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे सीधा मैं एक लाइन लिखूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ लिखूंगा ट्रू प्लस ट्रू, क्या आएगा आउटपुट? I think 2. किसी को वो तो नहीं याद आ रहा 1 + 1 = 1, जो हम गेट्स पढ़ते हैं, एंड गेट और गेट नेट गेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सीधा वैल्यूज होते हैं। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर आप प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब हमें डेटा बहुत सारा होता है, तब हम आप देखोगे बूलियन जो वैल्यूज आ रही होती है फाइनल आउटपुट में, आपको उनको चाहिए होता है कि मुझे इनका समीशन मिल जाए। तो मुझे नहीं चाहिए ट्रू लिखा हुआ या फॉल्स लिखा हुआ, मुझे पता होना चाहिए कि कितने सारे ट्रू हैं, कितने सारे फॉल्स हैं। देन दोज आर द नंबर्स, इसलिए हम उनके साथ जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेटर्स हम देखेंगे कल कि ऑपरेटर्स वगैरह क्या होते हैं। फिर हम सीधा डीएस से खत्म करेंगे, उसके जो बेसिक टपल्स वगैरह लिस्ट डिक्शनरीज होती हैं, कल के लेसन में कवर करेंगे हम सारी चीजें। तो होता क्या है कि इनकी मुझे वैल्यूज चाहिए होते हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूँ ट्रू प्लस ट्रू, और एज दे आर कंसिडर्ड एज ए नंबर, भले ही वो ट्रू लिखे हैं पर ऐसा समझिए दैट इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 है, फॉल्स दैट इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है। तो जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो नंबर्स पे अप्लाई होते हैं, दोज कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन दीज बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। अब अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे अगर इनफाइनाइट प्रिंट करना हो, इन कोई चीज इनफाइनाइटली, किसी को मुझे इनफाइनाइट वैल्यू असाइन करनी हो, तो मैं कैसे करता हूँ? Float INF. फ्लोट ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग में INF. INF, गुड। तो बेसिकली ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो हम पाइथन में ही होता है, अगेन पाइथन में ही होता है। बाकी कई बार क्या होता है ना कि आपको पढ़ाया जाता है ना कि इनफाइनाइट लूप बनाया जाता है, जब वाइल में कोई वैल्यू, जो लोग अभी प्रोग्रामिंग नहीं किए आप प्लीज, मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता हूँ, इग्नोर कर देना, जो समझना है ना वो इग्नोर कर देना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार हम जब लूप बनाते हैं तब हमें एक हमने ट्रू लिख दिया, इनफाइनाइट लूप बना दिया, क्योंकि हमने बोला कि black 2 is greater than 1, always true। so अब 2 is greater than 1 के अंदर अगर मैं कोई कंडीशन लिखता हूँ तो ये बार बार प्रिंट होता ही रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी फाल्स तो होने वाली नहीं है। तो लूप की बजाय अगर मुझे कोई भी, अगर कई बार पूछा जाता है कि मुझे इनफाइनाइट वैल्यू कुछ कहीं पर असाइन करनी हो, तो मैं कैसे लिखूंगा कि मुझे इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करना हो, या मुझे बोलना हो कि इनफाइनाइट नंबर से कंपेयर करना हो, तो मैं कैसे करूंगा? मैं सीधा यूज करूंगा INF फंक्शन का। अच्छा, एक बात बताइए, INF क्या के फ्लोट आएगा कि इंट, या कुछ नहीं आएगा? आई गेस किसने आंसर किया था? दानिश। फ्लोट आएगा. तो बेसिकली जब भी हम INF फंक्शन का यूज करेंगे, वी गोना सिंपली राइट INF इनफाइनाइट कभी प्रिंट नहीं होगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, और जो भी अब जहां भी कंपैरिजन करना आपको कुछ भी होगा या फिर मल्टीप्लाई करना होगा, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आप x की वैल्यू इनफाइनाइट है। आप ऐसे x या किसी भी वेरिएबल को इनफाइनाइट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक और चीज कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम आज के ये वेरिएबल्स वाली कहानी बंद करेंगे।
इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिट फंक्शन। आप अगर याद करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इन्फिनिट फंक्शन होता है। अगर नोट कर रहे हैं तब भी आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसके नोट्स बनाए हैं जो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई एक यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा टेक फ्यूजन। ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल हुआ। हमने जितने टाइप ऑफ वेरिएबल्स डेटा टाइप पढ़े थे, इन, फ्लोट और बुलियन, एक और था स्ट्रिंग, यानी कि ये जो लेटर्स होते हैं, कोई सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड्स हैं, दोज आर नोन एज स्ट्रिंग्स। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक फ्यूजन, बट मुझे क्या करना है, इसके ना इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग मतलब 0 1 2 3 नंबरिंग करनी है। तो अब होता क्या है कि जो वैल्यूज स्टार्ट होती हैं, मतलब कहीं पे भी अगर आपको इंडेक्स करना है या फिर कहीं पे भी आपको प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे, नंबर्स के साथ, कि मुझे चाहिए कि थर्ड लेटर प्रिंट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट 0, ठीक है। अब अगर मैं ये करूंगा यहाँ पे, तो प्रिंट होके जो वैल्यू आएगी कुछ नहीं आएगी। अब क्या एरर आ गया, इंडेंटेशन लेवल मैच नहीं हो रही शायद, क्या नहीं मैच हो रही, इंडेंटेशन लेवल दोनों लाइन की। कौन सी लाइन की, इनकी। हाँ, टेक्स्ट और प्रिंट की। तो अब ये जो चीज होती है ना, देखिए बेसिक जो हम कोई भी आईडीज आप यूज करोगे, तो उसमें जब एरर आते हैं तो वो एरर भी बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, क्योंकि एरर्स की भी एक अलग डिक्शनरी होती है, कि जैसे होता है ना एरर 101 401 जो आते रहते हैं, तो हर एक एरर को आपको देखना पड़ता है। इंडेंटेशन पाइथन का एक फीचर भी है, और एक इंडेंटेशन आप पाइथन के एक काम में भी बोल लीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो इंडेंटेशन को इग्नोर कर देती है। अगर आप ऐसे 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 करके लिखें या कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फर्क नहीं पड़ता, बट पाइथन को फर्क पड़ता है। और ये एक फीचर भी है। क्यों फीचर है, क्योंकि जब आप देखोगे कि आप कोई फंक्शन लिखोगे या फिर कोई आप लूप बनाने जाओगे या फिर इफ कंडीशन लिखोगे, इफ ब्लॉक्स आप पढ़ोगे, तब हमें ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम वहां पे इंडेंटेशन का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लुक, तो जितने भी इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही ये होता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये होता है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, लास्ट तक जहाँ तक जाता है। बट अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, देन आई विल राइट -1। अगर मैं -1 लिखूंगा तो ये रिवर्स से यहाँ से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, -1 -2 -3। अब -0 तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए -1 से भी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट नंबर ये है बट नेगेटिव में, ठीक है। रिवर्स अगर मुझे प्रिंट करना है तो ये, अगर इनिशियली प्रिंट करना है देन विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। कोई डाउट अभी तक किसी को कुछ भी, डाउट्स हैं कोई किसी को कुछ भी नहीं, हम फिनिश करें। आज असाइनमेंट क्या क्या था, तो मैंने आपको बोला था कि 3 वेरिएबल्स अगर हमें ए बी सी को हमें अगर वैल्यूज चेंज करनी, स्वैप करनी हो, कैसे करनी, वो आपको देख के आना है। और आपको और क्या देखना था, डायनेमिक वेरिएबल्स, डायनेमिक कैसे होता है चीज़ें, वो भी आपको देखनी है, सर्च करके आनी है। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। और एक छोटा सा करने के लिए कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस, रेडियस वगैरह डाल के वो सब करने की कोशिश करिए। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया पाइथन प्रोग्रामिंग अभी तक, तो इसके हिसाब से तो अभी आप यही कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो वो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा। बट अभी आपको मैंने इनपुट लेना नहीं बताया, तो आप इनपुट तो नहीं ले पाएंगे, बट इनिशियली आप वैल्यू दे दीजिए, रेडियस बता दी, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना, देख लीजिएगा, ठीक है।
कोई डाउट किसी को यहाँ पे? Again, I'm asking you the bigness. आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात कर रहे थे। हाँ, सॉरी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग रहेगी। देखिए 8:15 हो गया, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में असाइनमेंट में रख लीजिए, ठीक है। जो मुझे आना था तो मैं असाइनमेंट कर देता हूँ। तो कितने असाइनमेंट हो गए, किसी ने नोट किए? एनीवन हैज नोटेड द असाइनमेंट? 4। प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, जिससे अगर ना सबको पता हो तो एक बार देख लेंगे, अगर किसी ने नोट किए तो। ABC 3 वेरिएबल्स को स्वैप, डायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल जो भी, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग या स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, ठीक है। ये आपको एक्सप्लोर करके आनी है, ठीक है। और ये आप, क्योंकि आप डेली अगर 4 टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो कम से कम आपको 10 तो एक्सप्लोर करने ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कल। हम कोशिश करेंगे कि जो और बेसिक्स है वो खत्म कर लें। कल के बाद फिर हम आ जाएंगे, ये फंक्शंस वगैरह खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर धीरे धीरे हम अपनी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है या फिर फाइल हैंडलिंग फिर खत्म करेंगे। फिर 1-2 मॉड्यूल्स इन लाइब्रेरीज पे आएंगे, फिर नंपाइस पांडास कैसे होता है वो भी देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं। और किसी को कुछ डाउट है then they can mention, otherwise you can ask in the chat box. नित्या, आपको कोई डाउट तो नहीं है अभी? No, sir. Okay, good. Okay, so bye bye, we'll see you in the next class. Thank you, sir. Thank you.